الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين صحيح ابن ماجه ونسائی رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي آمين حاضرین جمع ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی و کبریائی تعریف و تسبیح اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے بے بہا درود و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین جمع اس امت ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ مصیبتیں اور پریشانیاں آ گئی ہیں اور کچھ الجھنوں کا یہ امت شکار ہو گئی ہے ان مصیبتوں اور پریشانیوں میں ایک بہت ہی عظیم اور بڑی مصیبت یہ ہے کہ یہ امت غلو کا شکار ہو گئی ہے امت کے اندر غلو آ گیا ہے غلو کس کو کہتے ہیں غلو کسی بھی چیز کو اس کی اصلی حالت پر قائم نہ رکھنا یہ غلو کہلاتا ہے غلو کا مطلب حد سے آگے بڑھ جانا اس کو غلو کہتے ہیں اور شیطان جو بڑا مکار ہے جو بڑا عیار ہے جو ہم انسانوں کا ازلی دشمن ہے وہ ہم انسانوں کو کسی نہ کسی طرح گمراہ کرنا چاہتا ہے تو جو لوگ نفسانی خواہشات سے گمراہ نہیں ہوتے شیطان
गुलू के ज़रिए उनको गुमराह कर देता है, और गुलू के ज़रिए गुमराह करके वो शैतान अपना निशाना उनको बना लेता है। तो हमें चाहिए कि हम गुलू का शिकार ना हो। अल्लाह ताला ने अहले किताब को गुलू करने से रोकते हुए फरमाया, या अहलल किताबी ला तगलू फी दीनिकुम, आए अहले किताब तुम दीन के अंदर गुलू ना करो, गुलू का शिकार ना हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत से खिताब करते हुए कहा, या अय्युहन्नास इय्याकुमुल गुलू फी दीन, ऐ लोगो दीन के अंदर गुलू और ज़्यादती करने से बचो। फ़इन्नहु अहलक मन काना क़ब्लकुम, इसलिए कि तुमसे पहले की कौमों को इसी गुलू ने हलाक व बर्बाद किया था, इसलिए तुम गुलू करने से बचो। और आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहले गुलू शैतान ने किया था उस वक्त जब अल्लाह ताला ने उससे कहा था कि आदम को सजदा करो, तो वह गुलू का शिकार हो गया। वो अपने आप को बड़ा ऊंचा समझने लगा और कहा कि अल्लाह मैं इसको सजदा क्यों करूं, मेरा मुकाम तो बड़ा ऊंचा है और आदम तो मिट्टी से है। तो गुलू सबसे पहले शैतान ने किया, और इस ज़मीन पर सबसे पहले गुलू नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने किया, और गुलू का शिकार होकर वो लोग शिर्क और बुत परस्ती का शिकार हो गए। आपको मालूम होना चाहिए दुनिया में शिर्क की इब्तिदा गुलू की वजह से हुई। पहले लोग मुसलमान थे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नूह अलैहिस्सलाम तक तकरीबन 10 ज़माने आए हैं। हदीस में आता है 10 करीने आए हैं, 10 ज़माने आए हैं, 10 नस्लें आए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए 10 नस्लों का मतलब उस ज़माने में इंसानों की उम्रें 1000 साल हुआ करती थी। एक एक इंसान तकरीबन 1000 साल तक जिंदा रहता था। खुद नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक दावत व तबलीग का काम किया, 50 साल की उम्र में नबी बनाए गए। नूह अलैहिस्सलाम की उम्र खुद 1000 साल थी। उस ज़माने में हाइट लंबे होते और उम्रें ज़्यादा होती थी, तो 10 पीढ़ियों तक लोग तौहीद पे कायम रहे। 1000 साल की एक नस्ल अगर हम तस्वुर करें, 10,000 साल तक इस ज़माने में, इस दुनिया में, जब से दुनिया बनी लोग तौहीद पर कायम थे। लेकिन उसके बाद जब कौम के लोग गुलू का शिकार हो गए, शिर्क उनके अंदर आ गया। और गुलू का शिकार कैसे हुए? कौम नूह के 5 लोग थे जो बड़े नेक थे, वद, यगूस, यऊक, नसर। अल्लाह ने सूरह नूह में उसका जिक्र किया, ला तज़रुन्न आलिहतकुम वला तज़रुन्न वद्दन वला सुवाअन वला यगूसा व यऊका व नसरा। ये लोग कहा करते थे कि हम अपने माबूदों को नहीं छोड़ेंगे। उनके माबूद कौन थे? ला तज़रुन्न वद उनका माबूद था, यगूस, यऊक, नसर, वद्दन वला सुवा उनका माबूद, यगूस, यऊक, नसर, ये 5 उनके माबूद थे। और वो उनकी इबादत क्या करते थे? और ये माबूद कैसे थे? ये गुलू की वजह से वो उनकी इबादत क्या करते थे? बुखारी की आप रिवायत पढ़ें, ये 5 लोग जो थे ये अल्लाह के नेक बंदे थे, बहुत ज़्यादा अल्लाह की इबादत करने वाले थे। शैतान ने इनको ज़िंदगी में बहकाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। वो उनको उनकी ज़िंदगी में बहका नहीं सका, वो शैतान के बहकावे के शिकार ना हुए। शैतान जब उनसे मायूस हो गया तो उनकी मौत का इंतज़ार करने लगा। जब उनकी मौत हो गई और लोग उस गम में थे, क्योंकि वो माशरे के बेहतरीन लोग थे, वो उस कौम के बड़े नेक लोग थे। लोग उनके गम में कि इतने अच्छे लोग हमसे रुखसत हो गए, इतने नेक लोग हमसे रुखसत हो गए, तो शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला। देखिए, शैतान जो इंसानों को बहकाता है वो अच्छी नीयत और अच्छे इरादे से बहकाता है। इसलिए कि शैतान अल्लाह से वादा करके आया था, लाक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, अय अल्लाह जरूर मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठकर तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। सिरातकल मुस्तकीम, मैं सिराते मुस्तकीम पर बैठकर गुमराह करूंगा। अगर शैतान सिराते मुस्तकीम पर ना बैठे तो लोग गुमराह ना हो। शैतान लोगों को दूसरे जरिए से नहीं बहकाता, बल्कि अच्छे वसवसे, अच्छे ख्यालात उनके दिलों में डालकर बहकाता है, जैसे नूह अलैहिस्सलाम के कौम को बहकाया। जब उनका इंतकाल हो गया, शैतान लोगों के पास आया जो उनके गम में परेशान थे, और आके कहने लगा कि देखो, बल्कि उनके दिलों में वसवसे डाला कि तुम ऐसे करो कि इनके मुजस्समे बना लो। जिनका इंतकाल हो गया, ये अल्लाह के नेक लोग थे, ये अल्लाह के औलिया अल्लाह थे, ये बुजुर्ग लोग थे, अल्लाह की अच्छी इबादत करने वाले थे, तो क्या करो, तुम इनके मुजस्समे बनाओ। बल्कि बाज़ रिवायतों में है कि शैतान ने उनको आकर कहा
कि मैं इनके मुजस्समे बनाकर तुमको देता हूं, तुम इनको देखोगे तो अल्लाह की याद आएगी, यानी इनकी इबादतें तुमको याद आएगी कि वो कैसे अल्लाह की इबादत क्या करते थे। जब अल्लाह की इबादत याद आई तो तुम उसी तरह इबादत करना। अल्लाह अकबर। देखिए बहकाने का तरीका, कहा कि तुम उनकी मूर्ति इसलिए बनाओ कि जब तुम उनको देखोगे उनकी इबादतें याद आएगी, जब इबादतें याद आएगी तो तुम भी उसी तरह अल्लाह की इबादत करना। लोगों को उसका मशवरा अच्छा दिखा और उसने लोगों को एक एक मूर्ति ला कर दी, लोग उसको चौराहों पे लगा दिए और जैसे वहां से लोग गुजरते उनको देखते, उनकी इबादतों को याद करते और अल्लाह की इबादत क्या करते। कुछ अरसा गुजरा तो शैतान उनके पास आया और कहा कि देखो इनको याद करने के लिए तुमको चौराहे पे आना पड़ रहा है, ऐसा करता हूं मैं हर एक को एक एक तस्वीर ला के उनकी देता हूं, तुम अपने घरों में उसको लगा लो और घरों में ही देखो और अल्लाह की इबादत करो, इस तरह तुम ज्यादा अल्लाह की इबादत करोगे। उनको ये मशवरा अच्छा लगा। शैतान ने सबके घरों में उनकी मूर्तियां लाकर रख दी, वो मूर्तियां घरों में लगा दिए। मूर्तियों की इबादत नहीं करते थे बल्कि उनको देखकर वो नेक लोगों की इबादत याद करते और अल्लाह की इबादत क्या करते। जब कुछ नस्लें गुजरी, 2-4 पीढ़ियां गुजर गई तो शैतान उनके पास आया और कहा कि देखो ये जो बुत घर में रखे हुए हैं, तुम्हारे बाप दादा इनकी इबादत करते तो अल्लाह बारिश बरसाता था, तुम्हारे बाप दादा इनकी इबादत करते तो उनकी दुआएं कबूल होती थी, तो तुम इनकी इबादत करो। इस तरह लोग बुत परस्ती का शिकार हुए और दुनिया में ये गुलू की वजह से लोग अल्लाह के नेक बंदों की इबादत करने लगे। जब माशरे के अंदर शिर्क फैला और अल्लाह को छोड़कर इन अल्लाह के नेक बंदों के लोग इबादत करने लगे तो अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा और नूह अलैहिस्सलाम ने यही दावत दी कि लोगों एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह का डर इख्तियार करो। कौम के लोग नहीं माने और कहा ला तज़रुन्ना आलिहतकुम, ऐ नूह हम हमारे माबूदों को नहीं छोड़ सकते, वला तज़रुन्ना वद्दन वला यगूसा व यऊका व नसरा, न हम ये 5 नाम उन्होंने लेकर कहा ये तो हमारे माबूद हैं, हम इनको नहीं छोड़ सकते और तुम्हारी बातों में आकर हम एक अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्तों ये शैतान की बड़ी चाल होती है कि जब अल्लाह का कोई नेक बंदा जिसको शैतान उसकी जिंदगी में उसको बहका नहीं सकता, तो शैतान ये कोशिश करता है कि उनके मरने के बाद उनका नाम लेकर औरों को गुमराह करे। जैसे शैतान ने नूह अलैहिस्सलाम के कौम के उन 5 लोग जो अल्लाह के नेक बंदे थे उनके जरिए दूसरे अल्लाह के मखलूकात को शैतान ने गुमराह किया। तो यही आप देखें ईसा अलैहिस्सलाम का यही मामला है। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर थे, शैतान उनको गुमराह नहीं कर सका। अब उनके नाम पर उनके मानने वाले गुमराह हो गए। वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह। उज़ैर कहते हैं, यहूद कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, नसारा कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। गुलू का शिकार हो गए जबकि ये अल्लाह के बेटे नहीं थे, ये इंसान थे। कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा ईसा अलैहिस्सलाम से, या ईसा ये तुम बात बताओ, अंता क़ुल्ता लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहीन मिन दूनिल्लाह, क्या तुमने लोगों को यह कहा था अल्लाह को छोड़कर तुम्हारी और तुम्हारी माँ की इबादत की जाए? ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे क़ाल सुब्हानक, या अल्लाह तेरी जात पाक है, मैं कैसे कह सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं ऐसे कहूँ। जब तक मैं जिंदा रहा मैं उनकी इस्लाह करता रहा, अब जब तूने मुझे उठा लिया मैं नहीं जानता कि उन्होंने मेरे साथ क्या मामला किया, और तू तो दिलों के भेदों से वाकिफ है, दिल के अंदर क्या है तो उससे वाकिफ है। तो मेरे दोस्तों ये शैतान का एक बहुत बड़ा मकर और जाल है जो नेक लोगों का नाम लेकर उनके गुलू के अंदर गिरफ्तार करके दूसरे मुसलमानों को शैतान गुमराह करता है। इसी तरह मौजूदा दौर में मुसलमानों की अक्सरियत जिससे गुमराह हुई है, जो अल्लाह के एक वली से नेक इंसान से गुमराह हुई है, दुनिया उनको पीराने पीर अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमहुल्लाह के नाम से जानती है। अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमहुल्लाह बहुत बड़े वली थे, अल्लाह से डरने वाले थे, कामिल वली थे, अल्लाह का डर उनके अंदर था। लेकिन उनके इस दुनिया से जाने के बाद शैतान ने उनका नाम लेकर एक बहुत सारे लोगों को गुमराह कर दिया। उनको तो गुमराह ना कर सका, वो जब भी शैतान उनको भटकाना चाहा वो अपने अल्लाह के डर और तकवे की वजह से गुमराह नहीं हुए। उनके बारे में आप लोगों ने भी वाक़या सुना होगा कि एक मरतबा शैतान ने बादलों में आकर उनसे कहा, अय अब्दुल क़ादिर तुम्हारी इबादत से हम इतने खुश हो गए कि आज के बाद नमाजें तुम पर माफ कर दी गई।
नमाजें माफ हो गई। ये समझ गए नमाज तो अंबिया अलैहिस्सलाम को माफ नहीं हुई, मुझसे कैसे माफ हो सकती है। फौरन औज़ बिल्लाह और कहा कि ऐ मरदूद, ऐ लाइन, कैसे मुझसे नमाजें माफ हो सकती है। उन्होंने फौरन उसको धुतकारा तो दोबारा उसने कहा, ऐ अब्दुल कादर, मैंने तो हजारों लोगों को गुमराह कर दिया, तुम्हारे इल्म ने तुमको बचा लिया। वहां पर भी उनको जो है नुकसान पहुंचाना चाहा। अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह ने फौरन कहा, ऐ बदबख्त, मेरे इल्म ने मुझे नहीं बचाया, बल्कि अल्लाह की रहमत और अल्लाह के फजल ने मुझे तेरे धोखे से बचा लिया। जिंदगी में उनको बहका नहीं सका, लेकिन जब वो इस दुनिया से चले गए, आज आप देखें उनके नाम पर क्या क्या खुराफात हो रही है। अपने आप को मुसलमान कहने वाले किस तरह गुलू का शिकार हो गए, किस तरह आज आप देखें अफसोस होता है। मुसलमानों, मैं किसी की आयब जो नहीं करता, अल्लाह के लिए होश के नाखून लो। अपने आप को मुसलमान कहने वाले आज रास्ते रोक रोक कर 11वीं कर रहे हैं। पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के नाम पर कुर्बानी की जा रही है, उनके नाम पर देगे पकाई जा रही है। अल्लाह के लिए क्या तुमने उनकी तालीमात को पढ़ा है? शैतान ने धोखा देकर गुलू का शिकार करके आज इस उम्मत को गुमराह कर दिया है। पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह, उन्होंने अपनी जिंदगी में 5 किताबें लिखी है और आदमी अपनी किताबों से पहचाना जाता है, लेकिन उन 5 किताबें आप पढ़कर देखें, मुकम्मल उन्होंने तौहीद का दर्ज दिया, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया, लेकिन अफसोस उनकी तालीमात को हम भूल चुके हैं। उन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं। वो अल्लाह के वली थे, यकीनन वो वली कामिल थे, और अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर खुद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार अल्लाह के जो वली होते हैं उनको ना कोई खौफ होता है ना वो गमगीन होते हैं। और फरमाए वली कौन होते हैं? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, वली वो होते हैं जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं, अल्लाह पर ईमान लाकर तक़वे की जिंदगी इख्तियार करने वाले, ये अल्लाह के वली होते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह, उनका नाम अब्दुल कादिर था और उनकी कुनियत अबू मोहम्मद थी, उनका लक़ब मुहियुद्दीन था और उनके बाप का नाम मूसा था, उनकी माँ का नाम अमतो जब्बार फातिमा था, और ये बगदाद के एक गांव जीलान के अंदर पैदा हुए और उसी मुनासिबत से उनको जीलानी कहा जाता है। वो तकरीबन 470 हिजरी में वो पैदा हुए और 561 हिजरी में उनका इंतकाल हो गया, वो वफात पा गए। तकरीबन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह 91 साल की तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रहे। 91 ईयर तक वो जिंदा थे, और जब 18 साल की उम्र के हुए वह बगदाद तशरीफ ले गए। जीलान से वह बगदाद गए और वहीं पे उलूम दीनिया की तकमील की, दीन के इल्म को उन्होंने हासिल किया और वहीं पर अपनी बाकी जिंदगी बगदाद के अंदर वो गुजारे। और मेरे दोस्तों, वो तौहीद और तक़वे में बहुत आगे थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 5 किताबें लिखी हैं। गुनियतुत तालिबीन उनकी किताब का नाम है, फतहुल गैब उनकी किताब का नाम है, अल फतह रब्बानी, बशाइरुल खैरात, ये किताबें बहुत ज्यादा मशहूर हुई। 2 किताबें मशहूर हुई जिनका तर्जुमा उर्दू जुबान में भी हुआ, एक है गुनियतुत तालिबीन और एक है फतहुल गैब। ये 2 किताबें जिनका तर्जुमा तकरीबन हर जुबान के अंदर है। लेकिन वो लोग जो पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह से हकीकत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, क्या उन्होंने अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की किताबें पढ़ी है? हालांकि उर्दू जुबान में उनका तर्जुमा मौजूद है, इंग्लिश जुबान में मौजूद है, क्या कभी इन किताबों को पढ़ने की कोशिश की? जिंदगी भर यह शख्स लोगों को अल्लाह की तौहीद की दावत देता रहा, एक अल्लाह की तरफ ये बुलाते रहे। बल्कि फतहुल गैब के अंदर उन्होंने ये कहा कि अलैका बित्तक़वा, अपने एक मुरीद को नसीहत करते हुए कहते हैं कि सुन ले, अलैका बित्तक़वा, अल्लाह के डर को अपने ऊपर लाजिम कर ले। हर वक्त अल्लाह से डरना, अल्लाह के अलावा किसी से न डर, अल्लाह के अलावा किसी से उम्मीद ना लगा। जिंदगी की तमाम जरूरियात तो अल्लाह को सौंप दे। भरोसा करना है तो अल्लाह की जात पे भरोसा कर, सहारा लेना है अल्लाह की जात पे सहारा ले। और अत-तौहीद याद रख, जिंदगी और मौत सिर्फ तौहीद पे होना चाहिए। जिंदा रहे अल्लाह की तौहीद पे जिंदा रहे, और जब मर जा अल्लाह की तौहीद पे तू मर जा। ये फतहुल गैब में पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की तालीमात है। हवाला मेरे जिम्मे है, किताब उठाकर आप पढ़ें, आपकी किताब है। जिनको आप पीर समझते उनकी किताब है। कहा जिंदगी भर अल्लाह की तौहीद पे तो कायम रहना। अपने मुरीद को पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी की नसीहत है। और आज उनके नाम पे क्या क्या ड्रामे किए जा रहे हैं।
कैसे कैसे वाकया सुनाकर लोग शिर्क की गिलाजतों के अंदर मुब्तला हो रहे हैं। मुसलमानों, होश के नाखून लो, हम किसी की आइबजोई नहीं करते, हम तुम्हारी आंखें खोलना चाहते हैं। कब तक गफलत की जिंदगी गुजारोगे? कब तक अल्लाह के अजाब को दावत दोगे? कब तक अल्लाह का हक अल्लाह के किसी बंदे को दोगे? यह गुलू है, यह हराम है कि अल्लाह की सिफतें किसी और के अंदर दें, अल्लाह की सिफतें नबी को दें, यह जायज नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नसीहत करते हुए फरमाया, ला ततरूनी कमा अतरतिन नसार अल मसीह इब्न मरियम। अल्लाह अकबर, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक मर्तबा सहाबा का मजमुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबा के मजमुए में चले गए। सहाबा उठ के खड़े हो गए, आपने उठने से मना किया और कहा, ला ततरूनी कमा अतरतिन नसार अल मसीह इब्न मरियम। ऐ मेरे सहाबा, मुझे इस तरह ऊंचा मर्तबा ना देना जिस तरह ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम का मर्तबा दिया है। अना अब्दुन, मैं अल्लाह का बंदा हूं, फकूलू अब्दुल्लाह व रसूलुह। अगर तुमको कुछ कहना हो तो यह कहो कि अल्लाह के बंदे और उसके रसूल, इससे ज्यादा कुछ ना कहो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अपना तारुफ लोगों के सामने पेश किया कि मुझे कहना हो तो अब्दुल्ला कहो, यही मेरी इज्जत है। अल्लाह का मुकाम व मर्तबा किसी इंसान को देना यह गुलू है, यह शिर्क है, यह जहलत है, इससे इंसान हलाक व बर्बाद हो जाता है। लेकिन आज गुलू के नाम पर अल्लाह की शान, अल्लाह की सिफतें अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह को दी गई और ऐसे ऐसे बयानात आप व्हाट्सएप पे देखें, ऐसे ऐसे बयानात बयान किए जा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह का अज़ाब क्यों नहीं नाजिल होता? एक साहब बयान करते हुए कह रहे थे कि औलिया अल्लाह अपनी मर्जी से इस दुनिया में आते हैं और अपनी मर्जी से इस दुनिया में जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह के औलिया को ये इख्तियार कहां से? अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है, वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। जब किसी की मौत का वक्त आता है, एक सेकंड के लिए आगे और पीछे नहीं किया जाता। किसी को यह तक पता नहीं कि वह कब मरने वाला है, कहां मरने वाला है। मरना तो दूर की बात है, अल्लाह कुरान के अंदर कहता है कोई नफ्स ये नहीं जानता कल वो क्या करेगा, कल जो आने वाला कल है क्या करने वाला है, किसी इंसान को नहीं मालूम, किसी वली को नहीं मालूम, किसी पीर को नहीं मालूम, किसी नबी को नहीं मालूम कि वो कल क्या अमल करेगा। कुरान की आयत है, सूरह लुक़मान आप उठा के देखें, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्सा, क़यामत कब आएगी अल्लाह जानता है। वो युनज़्ज़िलुल गैस, बारिश कब होगी अल्लाह जानता है। वो यअलमु मा फिल अरहाम, माँ के पेट में क्या है अल्लाह जानता है। व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कोई ये नहीं जानता कि वो कल क्या करेगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कोई ये नहीं जानता कि वो किस जमीन पे मरेगा। ये अल्लाह के पास इसका इल्म है। लेकिन औलिया अल्लाह की शान बढ़ाकर अल्लाह का मकाम व मर्तबा देना, बल्कि बयान में वो साहब कह रहे हैं कि गौसे पाक की तो ये शान थी, अगर कोई बगैर वजह उनका नाम लेता तो मर जाता था। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। किस तरह उनकी शान के अंदर गुलू किया जा रहा है, जो भी बगैर वजह उनका नाम लेता मर जाता। फिर आगे लिखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुलाकात की और कहा कि अब्दुल कादिर ये क्या कर रहे हो, मेरी उम्मत को यूं ही मार रहे हो। तो कहा कि अल्लाह के नबी आइंदा से ऐसा नहीं होगा। तो उसके बाद से जब बेवजू कोई उनका नाम लेता तो मरता तो नहीं था, लेकिन उसका कोई ना कोई बाल टूट के गिर जाता था। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह का नाम बगैर वजू के लिया जा सकता है। अल्लाह कुरान की आयतें बगैर वजू की पढ़ी जा सकती है। अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में अल्लाह का जिक्र क्या करते, वजू से होते तब भी अल्लाह को याद करते, वजू से ना होते तब भी अल्लाह का जिक्र करते। और यहाँ यह कहा जा रहा है कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह का नाम अगर कोई बगैर वजू के लेते तो मर जाता। ये क्या है? औलिया अल्लाह की गुस्ताखी, औलिया अल्लाह की शान में गुलू, अल्लाह का मकाम व मर्तबा उनको देना। मेरे दोस्तों, ये वो मुसीबतें हैं जो इस उम्मत के अंदर आई है। इसीलिए हमें चाहिए हम पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह के किताब को हम पढ़ें और अल्लाह का जो हक है, जो हक अल्लाह को देना है वो किसी और को ना दें। शरीयत ने इससे रोका है। लेकिन मेरे दोस्तों, ज़बाह करना याद रखें, ये अल्लाह का हक है, ज़बाह की इबादत है। हम कुरान के अंदर पढ़ते हैं, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, या अल्लाह हम तेरे लिए नमाज पढ़ते हैं और तेरे लिए कुर्बानी करते हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर कहा, ऐ नबी आप ऐलान कर दें, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कह दो मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है। ला शरीका लह, उसका कोई शरीक नहीं, कोई शरीक नहीं, अल्लाह की किसी सिफत में कोई शरीक नहीं।
लेकिन अगर अल्लाह की सिफतें किसी इंसान को दो, ये गुलू है, ये शिर्क है, ये हराम है। अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह इनके तमाम आमाल से बेनियाज है। अल्लाह की कसम, वो एक नेक इंसान थे, जिंदगी भर तौहीद का दर्ज दिए। मैंने उनकी पूरी बातें यहाँ मैं लिख के लाया था, लेकिन अफसोस वक्त नहीं है, वरना मैं आपको सुनाता हूँ कि किस तरह उन्होंने लोगों को तलकीन की जिंदगी भर कि लोगों सिर्फ किताब और सुन्नत से अपने दामन को चिपका के रहना, किताब और सुन्नत को छोड़ोगे जलील व रुसवा होगे। और वो अपने बेटे अब्दुल वहाब को बुलाकर कहते हैं, बेटे जिंदगी में जब भी मुसीबत आई मैंने एक अल्लाह को पुकारा, अल्लाह ने मुसीबत दूर की। तुम्हारे ऊपर भी जब भी मुसीबत आए एक अल्लाह से सवाल करना, अल्लाह तुम्हारी मुसीबतें दूर करेगा। एक शख्स जो जिंदगी भर अपनी 91 साल जिंदगी में लोगों को तौहीद की दावत देते रहे और उसके इस दुनिया से चले जाने के बाद उसके नाम पर झूठे वाकयात, झूठे करामात के किस्से, झूठी कहानियां घड़ घड़ के मुसलमानों को गुमराह किया जाए, और ये वो मुसलमान जो चांद तक तो पहुंच जाए, ये वो मुसलमान जो डॉक्टर तो बन जाए, ये वो मुसलमान जो दुनिया की हर तरक्की को हासिल कर ले, लेकिन ये मुसलमान दीन के बारे में इतना घटिया हो गया है कि सामने वाले की बात को बगैर कुछ सोचे समझे वो कबूल कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, और सब ये झूठी करामात जो उनके सामने बयान की जा रही है उसको कबूल करके अल्लाह की जात में शिर्क कर रहा है, अल्लाह की सिफात में शिर्क कर रहा है, और अल्लाह का हक पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह को ये दे रहा है। कैसे कैसे वाकयात आपने सुना होगा कि मुनकिर नकीर आए कब्र में, जो पीराने पीर का धोबी था मर गया, मुनकिर नकीर आकर सवाल किए, मन रब्बुक मा दीनुक, उसने पुकारा पीराने पीर को, पीराने पीर कब्र में आ गए और मुनकिर नकीर के सरों को पकड़कर उन्होंने जो है दोनों के सरों को इस तरह मारा और कहा मन रब्बुक, तुझको पता नहीं तू किससे सवाल कर रहा है। और फिर पीराने पीर ने उनसे पूछा कि तुम फरिश्तों ने ऐसे क्यों कहा था जब अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को बनाना चाह रहे थे, तुमने ये क्यों कहा था कि आए अल्लाह ऐसी मखलूक को क्यों बना रहा है जो दुनिया में फसाद करेगी। फरिश्ते परेशान हो गए, कहा अरे पीराने पीर हमने तो नहीं, तमाम फरिश्तों ने कहा था, हम उनसे पूछ कर आते हैं। ये एक फरिश्ते को पकड़ लिए, दूसरा फरिश्ता गया पूछने के लिए, तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुमने मेरे बंदे के मुरीद से कैसे सवाल किया, अब जाओ जाके माफी मांगो और माफी मांग कर आओ। ये क्या किस्से है। और पब्लिक कहती है सुभान अल्लाह, ये बेवकूफ, ये लोग ये लोग क्या कहें, इनको कुछ कहें तो नाराज हो जाते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ऐसे लोगों के बारे में कहता है अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून, अल्लाह इनका मजाक उड़ाता है। इनकी अकल कहां ठिकाने गई, ये घास चरने इनकी अकल चले गई। कोई सवाल नहीं करता उस मुल्ला से जो इस तरह झूठी करामात बयान करता है कि कब्र के अंदर के वाकयात को किसने देखा है, कब्र में जो हो रहा है उसका इल्म इसको कैसे हुआ। और फिर मुनकर नकीर के जो दो छोटे बच्चे हैं जो इस तरह उनके सरों को जो है मारा जाए, बल्कि ऐसे हैबतनाक फरिश्ते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके दांत वो गाय की सींग की तरह बड़े बड़े दांत होंगे, अपनी दांतों से कब्र खोदकर वो मुर्दे को बिठाएंगे और अच्छे भले लोग उनके हैबतनाक चेहरे को देखकर वो जवाब भी भूल जाएंगे। अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा था अल्लाह के नबी, मैं तो एक कमजोर औरत और मुनकिर नकीर ऐसे डरावने चेहरे के लोग जब मुझसे सवाल करेंगे मैं कैसे उनका जवाब दे पाऊंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ आयशा युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबिती फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को उसकी तौहीद की वजह से साबित कदमी अता करता है, कब्र की जिंदगी में आखिरत की जिंदगी में वह साबित कदम रहकर मुनकर नकीर के जवाब दे सकता है। मेरे दोस्त, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया, लेकिन ये झूठे वाकयात खड़कर पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की शान गुलू करके गुमराह होना, मेरे दोस्तों याद रखो ये शिर्क है, ये हराम है। अगर कोई 11वीं करता है, पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह के नाम पर ज़बाह करता है, वो अल्लाह का हक पीराने पीर अब्दुल कादिर को दे रहा है जिससे वो भी बरी है। और बतलाइए ऐसे लोग कल क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे। कुर्बानी अल्लाह का हक है। हम नमाज में, हम कुरान के अंदर कहते हैं या अल्लाह मेरी कुर्बानी तेरे लिए है, मैं कुर्बानी तेरे लिए करना चाहता हूं, और हम किसी और को की रजा के लिए हम कुर्बान कर रहे हैं, रास्ते रोक रहे हैं। और यह अजीब बात हो गई है, रास्ते रोककर मुसलमानों को तकलीफ दी जा रही है। एक तो शिर्क का काम कर रहे हो, दूसरे रास्ता रोककर चलने वालों को तकलीफ देकर तुम कौन सा नेक काम कर रहे हो।
अल्लाह को क्या जवाब दोगे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो रास्ता साफ करने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने मेराज के मौके पर एक आदमी को देखा जो एक दरख्त पर झूला झूल रहा था। फरिश्तों से पूछा इसकी कौन सी नेकी? कहा ये रास्ते से जा रहा था, रास्ते में कांटेदार दरख्त था जिससे लोगों को तकलीफ होती थी, उसने उस दरख्त को काट दिया। अल्लाह ताला को ये अदा पसंद आई, अल्लाह ने उसको जन्नत अता कर दी। मुसलमान रास्ता रोकने वाला नहीं होता, मुसलमान किसी को तकलीफ देने वाला नहीं होता। आज तुम तो एक शिर्क कर रहे हो, 11वीं करके अल्लाह के गजब के मुस्तहिक हो रहे हो, पीराने पीर अब्दुल कदर जिलानी रहमहुल्लाह के गजब के मुस्तहिक हो रहे हो। अल्लाह की कसम वो भी तुम्हारे इन अमाल से बरी हैं, उनको नहीं पता। और अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर वह आकर तुम्हारी इन हरकतों को देख ले जो अल्लाह का हक तुमने उनके लिए कर रहा है, अल्लाह की कसम वो इस तरह बेजार हो जाएंगे जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम ईसाइयों की हरकतों से बेजार है। उन्होंने कभी नहीं कहा एक किताब उनकी कोई बता दो, एक किताब, उनकी 5 किताबें हैं जिसमें उन्होंने ये कहा हो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना है। एक किताब बता दो, मैं चैलेंज कर रहा हूं। उन्होंने कहीं लिखा हो कब्रों को सजदा करना है, कहीं उन्होंने लिखा है 11वीं करना है, एक किताब उनकी बता दो। जब उन्होंने ये काम नहीं किया, ये अमल नहीं किया, किस बुनियाद पर ये जो है ये ड्रामा रचाया जा रहा है? किस बुनियाद पर कौम को गुमराह किया जा रहा है? किस बुनियाद पर गुमराह हो रहे हो? अल्लाह का डर नहीं लगता? अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे? अल्लाह का जो हक है कुर्बानी, वो किसी और के लिए तुम वो हक दो और अपने आप को पक्का और सच्चा मुसलमान कहो। ये कैसे हो सकता है? मुसलमानों होश के नाखून लो, शिरक ना करो, शिरक की गिलाजतों से बचो। अल्लाह की अजमत, अल्लाह का हक अल्लाह को दो। मखलूकात भी शिरक नहीं करती। तुम, अल्लाह ने तुमको इंसान बनाया, लेकिन तुम अल्लाह का हक किसी और को देकर जलील हो रहे हो। अल्लाह ने कहा लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को अच्छी शक्ल अता की, सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, लेकिन ये ऐसे अमल कर रहा है, अमल करके अस्फला साफिलीन में हो गया, जलील तर हो गया, दुनिया की तमाम मखलूकात से बदतर हो गया। इसीलिए कहा इन्नल लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीना फी नारी जहन्नम खालिदीना फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। जो लोग शिर्क करते हैं, अल्लाह की अजमत, अल्लाह के हुकूक, अल्लाह की सिफात किसी और को देते हैं, फरमाया खालिदीना फीहा, वो जहन्नम के अंदर हमेशा हमेशा रहेंगे। उलाइका हुम शर्रुल बरिया, ये कायनात की सबसे बदतर मखलूक है, इसलिए कि कोई मखलूक शिर्क नहीं करती, कोई मखलूक अपने जैसे मखलूक की इबादत नहीं करती। कभी आपने देखा कबूतर कबूतर की पूजा कर रहा हो, गाय गाय की इबादत कर रही हो, बैल बैल को पूज रहा हो? कभी आपने देखा? नहीं। ये इंसान होकर अपने जैसे इंसानों की इबादत कर रहे हैं। यहां बना दिया बोधन रोड पे चिल्ला, जाते जाते झुक रहे हैं, वहां सजदे हो रहे हैं। वो तो इंसान थे, अपने जैसे इंसानों के सामने माथा टेक कर अल्लाह कह रहा है तुम जानवरों से बदतर हो गए हो। कोई जानवर शिर्क नहीं करता, बल्कि अल्लाह ताला ने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंटी की मिसाल दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर है, बारिश नहीं हो रही है, सुलेमान अलैहिस्सलाम दुआ के लिए जा रहे हैं ताकि बारिश की दुआ की जाए। देखा एक छोटी सी चूंटी, अल्लाह के एक हकीर मखलूक है, वो चूंटी अपने पेट के बल, अपने पीठ के बल लेटे हुई है और अपने नन्हे नन्हे हाथों और पैरों को आसमान की तरफ उठाकर ये दुआ कर रही है, अल्लाहुम्मा खल्क़म मिन खल्क़िक, ऐ अल्लाह हम तेरी मखलूक हैं, अगर तू बारिश ना बरसाए तो हम कहां जाएं, हमारे पानी का कैसे इंतजाम होगा? सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की बोली समझते थे। जैसे ही चूंटी की वो दुआ उन्होंने सुनी, मुस्कुराए और अपनी फौज से कहा, अपनी कौम के लोगों से कहा, लोगों जल्दी घरों को वापस चले जाओ, तुमसे पहले अल्लाह की एक मखलूक ने अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की, घरों को वापस जाओ, ऐसा ना हो कि कहीं तुम बारिश से भीग जाओ। अल्लाह अकबर। ये छोटी सी चूंटी, उसका छोटा सा दिमाग, लेकिन उसको यह एहसास है बारिश बरसाने वाली जात अल्लाह की जात है, रब अल्लाह है, दुआएं अल्लाह कबूल करता है। और ये इंसान जिसका जो है 2.5 किलो की खोपड़ी है, इतना बड़ा दिमाग है, लेकिन इस बेवकूफ को इतना एहसास नहीं
मुसीबतें दूर करने वाला अल्लाह है, ये अपने जैसे इंसानों के आगे सर झुकाता है, ये कब्रों के आगे अपनी पेशानी को जलील करता है, ये अल्लाह को छोड़कर किसी और को मुश्किल कुशा, हाजत रवा, बिगड़ी बनाने वाला समझता है। जबकि चूंटी को अकल नहीं है, फिर भी यह एहसास है कि सब कुछ अल्लाह करने वाला है। यह इंसान जिसको अशरफुल मखलूकात बनाया गया था, जिसको इस दुनिया में अल्लाह ने अपना नायब बनाया था, अपना खलीफा बनाया था, अपने जैसे इंसानों के आगे झुकता है, मज़ारों के आगे झुकता है। उस रब को छोड़कर लोगों के सामने झुककर जलील होकर अपनी पेशानी को जलील करता है और शिर्क का मुर्तकब हो रहा है। मुसलमान, अल्लाह के लिए तौहीद को इख्तियार करो, तौहीद को इख्तियार करो। ये 11वीं छोड़ो, अल्लाह की कसम अपने उलमाओं से पूछो, एक दलील बतलाओ, क्या किसी सहाबा ने, ताबईन ने, तबे ताबईन ने या पीराने पीर ने इसका हुक्म दिया हो? जब नहीं है तो गैरुल्लाह के आगे ज़बाह करना यह हराम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़बह लिगैरिल्लाह फ़क़द अशरक, जिसने गैरुल्लाह के लिए ज़बाह किया उसने शिर्क किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़बाह करना तो दूर की बात है, गैरुल्लाह के लिए छोटा सा भी किसी ने नजराना पेश किया उसने शिर्क किया। वो हदीस आप जानते हैं, बनी इस्राइल के 2 लोग जा रहे थे, एक कब्र आ गई, कब्र के पास एक बुत आ गया, वहां लोग बैठे हुए थे। जाने वालों को रोका और कहा, हमारा ये तरीका है, ये हमारे बाबा की कब्र है, जब तक हम किसी को जाने नहीं देते जब तक कोई यहां कोई चढ़ावा ना चढ़ाए। एक आदमी ने कहा, दोनों ने कहा, हमारे पास कोई चीज नहीं, हम चढ़ावा चढ़ाए, हम तो खाली हाथ हैं। तो उन मुजाविरों ने कहा, अगर कोई चीज नहीं तो कम से कम एक मक्खी, जो यहां मक्खियां उड़ रही हैं, एक मक्खी को मारकर हमारे बाबा की खबर पे चढ़ा दो, हम तुमको जाने देंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक आदमी ने सोचा कि मक्खी की बात है, मक्खी मारा, कब्र पे चढ़ाया, लोगों ने रास्ता छोड़ा। आपने फरमाया उसका अगला कदम जहन्नम के अंदर था, शिर्क किया, जहन्नम में चला गया। दूसरे ने कहा, भाई अल्लाह के अलावा किसी के नाम पर कोई चीज नहीं चढ़ा सकता, लोगों ने उसको कत्ल कर दिया। आपने फरमाया जन्नत में चला गया। लोगों, अल्लाह के लिए तौहीद को अपनाओ, अल्लाह का हक किसी को ना दो। औलिया अल्लाह के वली हैं, यकीनन हम एहतराम करते हैं, अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह की तौहीद की दावत उन्होंने लोगों को दी, लोगों को तौहीद परस्त बनाया। उनके मरने के बाद उनके नाम पर अगर शिर्क कर रहे हो, बतलाओ अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। और ये जहलत जो हमारे मोहल्ले के अंदर आम है, 11वीं की बुरी रस्म जो शिर्क अकबर है, अल्लाह से दुआ है ये मुसलमानों को अल्लाह तौफीक दे कि वो शिर्क से तौबा कर ले, कुर्बानी अल्लाह के लिए करें, ज़बीहा अल्लाह के लिए करें, अल्लाह की इबादत करें, जब तक जिंदा रहें अल्लाह की तौहीद पर जिंदा रहें, और जब मौत आए कलमे तौहीद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह उनकी ज़बानों से जारी रहे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफुर रहीम।